Red Studios. आज के हमारे मेहमान वह हैं जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर कॉर्पोरेट जर्नी की शुरुआत की और कुछ ही समय में अपने एंटरप्रेन्योरियल पैशन की वजह से जॉब क्विट कर उन्होंने स्टार्टअप जर्नी शुरू की और जल्द ही अपने पैशन और अपने दोस्त के साथ मिलकर चाय को अपना करियर बनाया और आज उनका चाय कैफे इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कैफे ब्रांड है, जहां चाय के शौकीन 80,000 तरह की मेरी वाली चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए करते हैं चाय भरी चर्चा अपने शुद्ध देसी मेहमान और चाय उसके को फाउंडर राघव वर्मा के साथ। हाय राघव, वेलकम ऑन द शो। हाय मंशु, थैंक यू। राघव, एक बात बताएं यार, मतलब हिंदुस्तान में किसी ने सोचा भी नहीं था कि चाय को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लेके जाएंगे और एक कैफे खोलेंगे। ये आइडिया आपको कैसे आया? तो ये आइडिया का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि देश में तो लोग चाय पीते हैं, राइट? इंडिया इज अ प्योरली चाय ड्रिंकिंग कंट्री एंड अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, सो फॉर एवरी कप ऑफ कॉफी दैट इज कंज्यूम्ड इन द कंट्री देयर आर 30 कप्स ऑफ चाय, राइट? राइट। Average adult Indian consumes 2 cups of chai every single day, right? That's the average. Or हम्म। being kind of like a national beverage for us, we still did not have option to go outside and get a good cup of chai. मतलब the minute that I step outside my house, या तो मुझे डिप वाली चाय मिलती है किसी भी रेस्टोरेंट में अगर मैं जाता हूँ, या मुझे ऑफिस में मशीन वाली चाय मिलती है which is not up to the mark, या मुझे किसी भी टपरी में जाके I would end up getting a chai which is very inconsistent. कभी बहुत बढ़िया बनती है, कभी अच्छी नहीं बनती है. That's not the kind of environment which I always want to go to. Say if I want to do a meeting, say if I want to meet some friends and hang out, and I want to spend time somewhere. So the idea for us was very simple कि घर के बाहर अच्छी चाय देनी है in a good ambience. And that was the simple problem statement that we set out to solve with Chayos. लेकिन राघव, कभी ऐसा लगा नहीं कि क्योंकि हर घर में यहाँ चाय बनती है और चाय एक तरीके से देखा जाए तो हमारा एक नेशनल बेवरेज है, तो इसको अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लेके जाएंगे तो इसके अपने चैलेंजेस भी हो सकते हैं, शायद लोग आए ना, क्योंकि उनको पता है घर पे भी चाय मिलती है, बाहर जाके भी चाय पीनी है, तो क्यों जाए। बिल्कुल सही है। तो इनिशियली जब हमने अपने दोस्तों से बात करी थी, फैमिली मेंबर से बात करी थी, तो लोग ने तो मतलब इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बट इवन इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एवरीवन सेड दैट a chai cafe idea just cannot work because people are used to having chai for 6 rupees, 8 rupees at the tapri. People are getting chai for free inside office, and a chai idea just cannot work. And matlab, for us it was also being able to prove that yes, this is a difficult, it's a challenging idea. So that was clear to us from day one. But that's how it is with most things which go against the normal of the time, right? It was just about doing that right execution of it. We would not even claim that we were the first people to get the idea for building a chai cafe or for building a chai place outside of home. But before us, there were two extremes of the spectrum. One was that very just upgraded hygienic tapri, which is just a takeaway kind of a format. And then there was the other extreme end, which was very gourmet tea room, which has South African teas, Chinese teas, Russian teas, which are being served. So nobody was serving the essential chai the way that we have it at home, and being able to give that same kind of a format, that same kind of a seating and a comfort level. And one thing which we did very differently from the start, we realized that when it comes to chai, we in India are very, very passionate about how we like to consume our chai, right? So for example, if I talk about my mom, she will only have a chai which has elaichi in it, which has a little bit of patti, thoda sa doodh hoga usme, halki chini hogi, and if it is made any other way, then she will just send that chai back and say ki phir se bana do isko, right? So for consumers like that, you have to be able to give that consumer what they want, and that chai drinking experience outside of home cannot be a compromise for that customer. So that's how we came on this idea of Meri Wali Chai, which is that आपको जिस टाइप की चाय अच्छी लगती है,
which is your preference, which you are used to having every day. You Mhm. should not have to come to a cafe and just have the three or four options which are available at that cafe. Mhm. And there we came up with this concept of customization and Meri Wali Chai, and we said that look, there are 80,000 ways in which you can make your chai at Chayos, Mhm. and that in essence is the reason why we get such a high repeat rate from our customers, Mhm. because we are actually solving that customer problem, and Mhm. we are not making the customer compromise on her kind of chai. तो जब आपने ये एक स्टेप ले लिया, आपने अपना पहला कैफे अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और Yes, correct. जब आपने ये शुरू किया तो आपका स्टार्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो स्टार्ट करने से पहले हमको हमको बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोग ने बोल दिया था कि शायद ये चाय का कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही नहीं। राइट। एंड हम हमको ये क्लियर था कि हमको एक हमको एक ऐसे कैप्टिव ऑडियंस के साथ ये ये काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही होगा, विच विच यू वुड हैव टू प्रूव कि यार एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट में दम है। सो हमारा इस एक्सपेरिमेंट का पायलट फेज बहुत ही क्लियर था कि हमारे पास 6 महीने हैं। 6 महीने में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेविंग्स हैं। अगर अगर हम इसको अगर हम इसको एक प्रॉफिटेबल सेटअप बना सकते हैं, अगर हमको कस्टमर ट्रैक्शन दिखता है, सो देन वी विल गो अहेड विद इट, नहीं तो वी कैन ऑलवेज गेट बैक टू आवर कॉर्पोरेट जॉब्स, राइट? इट वाज अ वेरी लिमिटेड टाइम एक्सपेरिमेंट। यार 6 महीने में वन कैफे, एंड वी नीड टू मेक इट वर्क। And this was in DLF Cyber City. So this was building number 5 in DLF Cyber City in Gurgaon, and it was a building which had about 3-4 thousand people. The first cafe that we opened, there was another coffee cafe in that same building, which used to do about 20,000 rupees of sale per day. That was the average daily sale that they were doing, right? A popular cafe chain. And we opened there, and we realized that their sale went down by half, and we were doing about 35,000 within the first month itself. And so that was so that of course the business number was one thing which gave us confidence, and the second thing which gave us confidence was that we started to see that there were customers who were repeating at such a high frequency with us, कि वही सेम कस्टमर आके चार चार चाय भी पी रहे थे अपने दिन में, हुँ, right? And considering that that same customer also had free chai available in their office, and they also had the tapri option available, which was a 6 rupee chai. हुँ, You हुँ, know, why would why would they come and spend a good amount of money on chai, uh, while while they had much cheaper options or free options available? हुँ। Of course, there was some value proposition in the entire thing, the kind of place we had created, the vibe we had created, and the chai we were serving. तो हमको यहाँ से हाई हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आया फ्रॉम आवर फर्स्ट कैफे। ऑफ कोर्स मतलब देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज फ्रॉम डे वन, we hired a team, a lot of people left from there, did not we had to get all the recipes made, just ensuring everything. There were times when nobody used to show up in the day, so we used to run the shift from 7 in the morning till 11 at night. So all of those things were part and parcel of the initial cafe challenges. But for us it was very clear कि हमको ये धंधा सीखना है फ्रॉम स्क्रैच। वी नीड टू गेट आवर हैंड्स डर्टी, वी नीड टू बिल्ड दिस अप फ्रॉम स्क्रैच, एंड देयर वर लॉट ऑफ लर्निंग्स देयर इन द इनिशियल डेज। तो राघव, जब स्टार्टिंग में आपने कैफ़े शुरू किया, तो चाय आप खुद बनाते थे या उसके लिए टीम हायर कर ली थी? सो ऑर्डर टेकिंग हम लोग करते थे। मैं और मेरा अच्छा। को-फाउंडर नितिन, हम लोग ऑर्डर टेकिंग करते थे। फिर मतलब ग्रेजुअली हमारी टीम आ गई, तो टीम वाज़ एबल टू टेक ओवर ऑर्डर टेकिंग आल्सो, एंड देन धीरे-धीरे वी स्टार्टेड टू प्ले दैट मैनेजर रोल, देन वी अपग्रेडेड फ्रॉम देयर। सो तो मतलब इट वाज़ अ प्रोसेस। यू नो म मैंने कहीं पढ़ा था, आई गेस चाय की रेसिपीज़ पहले से आई गेस नितिन ने हाँ, बनाई थी चाय की रेसिपीज़, रेसिपीज़ इफ आई एम करेक्ट, नॉट रॉन्ग? करेक्ट। नहीं, तो नितिन ने जो चाय की रेसिपीज़ बनाई थी, आपने कभी ये सोचा था कि शुरू करने से पहले एक बार मार्केट में ये चाय की रेसिपीज़ लोगों को टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा, या यू जस्ट थॉट कि यार एक बार शुरू कर ही देते हैं, देखी जाएगी जो होगा? नहीं, नहीं, खूब सारी टेस्टिंग तो करी थी हमने। काफ़ी काफ़ी सारे 6-8 महीने लग गए थे सारी रेसिपीज़ फाइनल करने में। तो बहुत सारा काम हुआ था रेसिपीज़ फ्रीज़ करने में, फूड की।
में, चाय की रेसिपीज में। एंड मतलब इंटरेस्टिंगली बहुत सारी रेसिपीज बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई हैं since the time that we started. So I think that's also testament to the fact कि यार हमने हमने वो कस्टमाइजेशन दिया कस्टमर्स को एंड वो फर्स्ट 2-3 कैफेज में जो भी आइटरेशंस हुए थे, वी वर एबल टू गेट दैट राइट कैफे चाय रेसिपीज इन प्लेस। चलो इस बात पे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा रेसिपी चेंज नहीं हुई है क्योंकि जब आपने कॉफ़ी शुरू करी थी, तब से लेके कॉफ़ी का टेस्ट आज तक सेम है। चाय का मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज़ आई डोंट ड्रिंक टी। so, so we have only one chai, one वही coffee on the कॉफ़ी। menu. Yeah. एक देसी फिल्टर कॉफी हम लोग करते हैं और एक कोल्ड कॉफी करते हैं. So that's only for those people who don't have chai like you. But we have 80,000 chais and we have 2 coffees. Great, super. So Raghav, I will ask one question which is like bothering me or which is there in my mind. जो आज से 12 साल पहले या 15 साल पहले उस टाइम पे हम शेफ्स के साथ बहुत इंटरेक्शन होती थी. There was a period when a lot of people from IIT who passed out like you, they would come and approach me कि हमें फूड बिजनेस करना है. और हम जब ऑपोजिट साइड में बैठे होते थे हमें सोचते थे कि यार ये आईआईटी से पढ़ के आया बंदा फूड बिजनेस क्यों करना है. और फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो बात बैठती नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप वाली. एंड एक आईआईटी का बंदा जो था, बहुत सारे आए थे लिटरली. आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम चेन्नई, बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर कि सर आपके साथ मिलके ये करना है. एंड आई नेवर एक्चुअली बिलीव्ड कि ये हो सकता है करके. वो स्टार्टअप के लिए मैंने देखा आपने 3 स्टार्टअप्स बनाए थे. वो स्टार्टअप के लिए कौन सा ऐसा जोश होना है, स्पेशली फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू और एन आईआईटीएन, बिकॉज इफ आई रियली लुक इनटू ऑल स्टार्टअप्स, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आईआईटी पीपल. ओके, सो ऐसा फूड बिजनेस में और स्टार्टअप में कौन सी ऐसी चीज पकड़ के रखनी चाहिए सो दैट हम शेफ्स भी वो चीज अपने अंदर ढूंढें और उसको इम्प्लीमेंट करें, एक स्टार्टअप बनाए जैसे आपने बनाया. So शेफ हमारे लिए the motivation was कि we wanted to create a very very big business. We wanted to enter into a market which had a lot of which would be able to impact a lot of people. So this was not my first startup. इसके पहले मैंने एक edtech में भी startup किया था. And again, that was a space that attracted Correct. me because it was such a big space and there was a chance to create something really big and to be able to impact a lot of people. Because education तो मतलब हर किसी को चाहिए होता है, right? Similarly, so it was not so much Correct. about कि मुझे food business में एक startup करना है, but कि यार चाय का एक idea ना बहुत बड़ा हो सकता है. And it has the potential to be there all over India, to be able to impact everybody in India, and at the same time possibly ये एक बहुत बड़ा global idea भी बन सकता है. So on day one we were very clear कि यार एक मतलब we are getting into this with a very large vision. We don't want to go and this was not supposed to be कि we'll make 20-30 cafes and we'll run that and we'll be comfortable with it. It was the largeness of the vision that actually attracted us on day one. हाँ, okay. So मतलब but still I मतलब is that something which a person as a chef what is that fire that one should have to get there, मतलब वो क्या होना चाहिए, कौन सी एक बात आपने एक बताई कि कोई ऐसी चीज लार्जर देन लाइफ आपको नजर आनी चाहिए. इज दैट व्हाट यू मीन? तब आपको एंटर करना चाहिए. Yeah, definitely. I think देखो entrepreneurship में at least that's what my experience has been कि this is not a short term game. This is not something that you will start today, you will instantly make a lot of money and you can retire and enjoy your life. It is not that kind of a journey. इसको actually मतलब हमको 8 साल हो गए हैं अब. जी. And now we are kind of touching that 100 cafe number. Now we are still understanding a lot of things about the market. We are still understanding a lot of things about customer, about our team. तो ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है. इसको करने के लिए एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा बड़ा विजन है और मैं इसके लिए ना जान लगा दूंगा.
and that persistence is the most important part of entrepreneurial journey. आपको एक Okay. बार तो वो रिस्क लेना ही पड़ेगा. It's like jumping off a cliff. आपको एक बार वो कूदना तो पड़ेगा ही. And मतलब there is there is always going to be that fear कि क्या होगा, नहीं चलेगा तो क्या होगा, right? And you will always have to come back. You'll just have to take that leap once and just be persistent कि यार लॉन्ग टर्म में बड़ा विजन है और Yeah. मुझे करना है इसको. और राघव, और एक चीज मैंने देखी है, जैसे ब्रांड्स ग्रो होते हैं उनका डेफिनेशन चेंज हो जाता है. लाइक कॉफी, कैफे कॉफी डे का डेफिनेशन फ्रॉम अ गुड चीप कॉफी एक्सपीरियंस टू क्रिएटिंग मेमोरीज वाली कहानी थी. अगर मैं न्यू एज कैफेज में देखूं, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स, दे आर नॉट फॉर कॉफी. आई थिंक दे आर selling table space more than the coffee, and an experience of using the Wi-Fi. Okay, so is there a shift anytime you see that from chai? Would there be a shift that you see in your brand offering in time to come? So I think for us, the more important thing was that हम एक्चुअली एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अच्छा. विच इज कि यार मुझे अच्छी चाय नहीं मिलती बाहर, घर के बाहर, राइट? एंड अगर मैं घर पे चाय पीता हूँ और मुझे कॉफी नहीं समझ में आती है, तो मुझे बाहर जाके कॉफी ही पीनी पड़ती है बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. Right. And because largely customer in India is a chai consumer, तो I don't have that fear कि हमारे यहाँ पे people will just come because we are offering that space, because ये तो product है जो customer को चाहिए, right? कस्टमर को समझ में आती है कि मुझे कड़क अदरक चाय चाहिए. Correct. कस्टमर को समझ में आता है कि कड़क अदरक चाय के साथ मुझे पकोड़े चाहिए, या मुझे चिली चीज टोस्ट चाहिए, मुझे बन मस्का चाहिए. Right? These are all products that the customer can very easily relate to. So for us, that is the power of our proposition कि हम actually एक customer की problem solve कर रहे हैं. Okay. So that's why I don't see that approach going into just a table space. जब तक हम लोग वो customer की problem solve करते रहेंगे और जब तक हम innovate करते रहेंगे, तो I think we should be able to stay relevant. राघव, एक चीज है जो हरपाल ने भी आपसे स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करी. स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रहा हूँ हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है. बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप वर्ल्ड लेके कूद तो जाते हैं इंडस्ट्री में कि हम भी अपनी स्टार्टअप फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टअप ना तो सस्टेन कर पाते हैं क्योंकि उनके अपने चैलेंजेस होते हैं. दूसरे एंड पे अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो स्टार्टअप फ्रेंडली नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली सिस्टम है. तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और आपने क्या चैलेंजेस फेस करे थे जब आपने इन्वेस्टर्स को रोप इन किया था अपनी ग्रोथ पीरियड में? So I think जो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि we are a lot of people are getting into startup just for the heck of doing startups because it is cool. I think मैं ऐसा नहीं बोलूंगा. I don't think that's the way that it is. I think there will always be a set of people. जब आप एक एस्पिरेशन क्रिएट करते हो, मतलब किसी भी आप इंडस्ट्री में देख लो, मतलब for every successful actor there are so many struggling actors who are there. For every successful musician there are maybe 100,000 struggling musicians who are there. तो हमेशा there will always be that set of people who will make it very big, and then there will be some people who will be able to kind of go from the starting phase to only like a mid-size segment, and that will always be the case. I think the good part is that people are now getting the courage to be able to go out there and take a risk, leave their jobs, try something, and be able to emerge stronger out of it. तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी, and this was in 2011 to start up. So for me उस टाइम पे ना काफी रेजिस्टेंस होता था, मतलब from general families, because awareness ही नहीं था कि यार स्टार्टअप क्या होता है, क्यों. And I come from a very government service background. So वो एक kind of hitch होता था मतलब entrepreneurs के लिए. Now startups have become so much more acceptable, and people don't hesitate, and I think that's a very strong thing that society is able to support, because लोग को समझ में आता है कि हाँ, मतलब even if you go on this journey, you invest 1 or 2 or 3 years in this journey and things don't work out, people will be
people are willing to hire you after that. And matlab, I would be very ready to hire somebody who has started their own organization and who has failed, because the kind of learnings and kind of experience and exposure you get, मतलब आप शायद 10 साल नौकरी करोगे, उतनी learnings आपको मिल जाएगी एक साल entrepreneurship में. So so मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखूंगा. I think we'll have both sides of the coin. There will be people who will get into it just thinking कि यार ये तो मतलब it's a get rich quick kind of a way. But there are many better ways to get rich than than to start your own organization, because this takes a lot of time to be able to actually create something. No, I completely buy your point, but at the same time, ऐसे भी लोग हैं, I'm sure you'll agree with me, जो इसे get quick rich वाली स्कीम के Correct. तरीके से देखते हैं. Correct. So I think that's a wrong way to see it. There will always be those set of people who will get into it for that and then realize that this is not for them. And there are also those people who will struggle for those 10 years, and then they'll finally make it. So I think it's a Obviously, mix of obviously. both. Obviously. और सेकंड पॉइंट मेरा आपसे जो था वो था पूरा जो इकोसिस्टम है हिंदुस्तान में, इट इज मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली रादर देन इट इज कंपनी फ्रेंडली और ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली. Correct. Absolutely. No, I think these are a set of reforms which are very necessary. तो मैं इसमें दो चीजें बोलूंगा. I think जो आपने पॉइंट पे हार्प किया है, that's something which we definitely need to bring in. The policies need to definitely be more entrepreneur friendly, and there are ways and means globally to do that. So no doubt about that. And the second point is that from our government perspective as well, we need to have little bit more of a focus on investment into startups. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कोई भी स्टार्टअप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होता तब तक एक बैंक से लोन ही नहीं उठा सकता, या एक गवर्नमेंट एजेंसी से कभी लोन नहीं उठा सकता. So if we are saying that we want to support startups, then only way is to get into a private fund. Most of those private funds are international funds who are willing to invest at early stage. So matlab, that is a mindset which needs to change. If we want to support startups, then we also need to be able to support with right capital at the right stage. And वो capital हमेशा मतलब it will be a risky capital in the early stages. But अगर आपको if we want ownership of our startups to be there with right Indian capital at this stage, then that is something we should definitely bring in. और एक और एरिया है, अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो मुझे एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया लगता है हिंदुस्तान में, स्पेशली मैं इंडिया की अगर बात करूं. और ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये मेजरली उन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूछ रहा हूं जो जिन्होंने अभी स्टार्टअप जर्नी शुरू करी है या इस फेज में है जहां वो शायद इन्वेस्टर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या कैपिटल इन्फ्यूजन की कोशिश कर रहे हैं. कि यूजुअली जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि बहुत सारे इन योर जर्नी you will find a lot of investors who are willing to pump in money, but other than investor they have got no skills. और बहुत सारे और मैं अगर स्किल्स की बात करूं, they don't even have financial skills. तो उनका मोटिव क्या होता है, 10 अलग-अलग कंपनी है, 10 में थोड़ा-थोड़ा इन्फ्यूज कर दिया, कोई एक तो चली जाएगी. और ये हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस वजह से बहुत सारे शायद जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में लोग आते हैं, वो इसको एक इजी मनी या क्विक मनी के तरीके से देखते हैं, ना कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी के तरीके से देखते हैं. आपका क्या कहना है इस बारे में? I think सब टाइप के लोग हैं. When you go into market, trying to raise capital as an entrepreneur, आपको ये समझ लेना चाहिए कि what is it that you are looking for. आपको कुछ केसेस में you will get capital without a lot of network or without a lot of learnings. कभी आपको right capital मिल जाएगा with right set of learnings, with right set of involvement. कभी आपको वो capital मिल जाएगा with right set of involvement and with right level of expertise. So that is also upon entrepreneur to be able to reach out to right set of investors कि यार मुझे क्या चाहिए आपसे. Similar lines पे अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक advisor ढूंढ रहे हो for your startup, right? You can reach out to different set of people. You can reach out to people who have been in the same journey in your field, or at the same time you can reach out to other entrepreneurs only who have kind of scaled to become very big businesses.
आपके लिए relevant set of advisor कौन होगा, that is something that you will have to talk to people, you will have to be able to articulate in your mind that what is it that you are looking for. And it's a similar case for investor. Matlab, the hand that is giving you that money, you need to be able to judge that what all you want to get out of that investor. So I would say ki again, matlab, at the risk of again sounding diplomatic and not giving a clear answer, I will say that look, it completely depends on the entrepreneur. What do you want to get out of it? So while Himanshu will be back, Raghav, one question for making good tea. चाय पत्ती जरूरी होती है एकदम सैनिटाइज या दूध? चाय पत्ती भी है, दूध भी है, और आपकी चीनी भी है, और आपका एड ऑन भी है। कौन सा लेकिन फ्लेवर डालूं? हरपाल जी, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। जी बिना दूध के चाय बन सकती है, बिना पत्ती के नहीं बन सकती। हाँ, ये वो आजकल वो बहुत सारी चाय ऐसी होती है जिसमें पत्ती होती ही नहीं है। बट उसको चाय नहीं बोलते हैं, उसको टी बोलते हैं। वो उसको मतलब चाय नहीं बोलते, लेकिन जैसे मोरिंगा चाय हो गई, मतलब अब वो चाय नहीं है, लेकिन मोरिंगा का पाउडर डाल दिया आपने, वो चाय बन गई, उसमें हल्दी डाल दी, पेपर डाल दी, लेकिन लोग उसको गर्म पानी की तरह, काढ़ा की तरह पी लेते हैं। सही डेफिनेशन तो शायद काढ़ा होगा, लेकिन एस्पिरेशन डेफिनेशन ये है कि भाई वो एक चाय बन गई है एस्पिरेशनल वाली। तो मतलब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे पंजाब में मेरे कुछ कैफेज है राघव, वहां पे हमने मतलब ढेरों सारी चाय रखी, लेकिन बिकती एक ही चाय है। आप जो स्टैंडर्डाइज भी हमने काफी सारे, जैसे आपने किया अदरक वाली चाय और XYZ, सरप्राइजिंगली वहां पे चाय मलाई मार के चलती है। हाँ, लेकिन हरपाल, उस पर डिपेंड करता है ना, आप रिच पीपल टी बना रहे हो या आम आदमी चाय बना रहे हो। नहीं मतलब क्योंकि आम आदमी चाय तो मलाई मार के ही होगी। रिच पीपल टी आपका इन्फ्यूजन होगा, जो इन्फ्यूजन वो मलाई निकालने के लिए ना हमें एक आदमी रखना पड़ता था कि भाई दूध से मलाई वो दिन भर मलाई निकाल रहा होता था। बोले शेफ कौन सी नौकरी दे दिया आपने मलाई निकालने की, क्योंकि हर चाय पे वो, और वो ये हो जाता था कि जिसको पसंद आई वो अगले दिन आया तो वो कहता मुझे मलाई मार के। अब उसमें अगर मलाई कम हो गई तो वो कहता था यार आज मजा नहीं आया, तो हम समझ जाते थे कि इसको मलाई कम मिली। वो अंदर जाके देखते थे वो बेचारा थक गया अंदर मलाई निकाल निकाल के। तो ये बड़ी चैलेंजिंग वाली चाय है। सो लाइक आई मीन हियरिंग यू आउट कि आपने इतने एट्रिशंस किए, 80,000 टाइप की चाय आप जो कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने भी कैफे शुरू किया था तो चाय पता नहीं कितनी टेस्ट की, अल्टीमेटली बिकनी शुरू हुई जो है वो मैक्सिमम 2 के बाद तीसरी जाती नहीं थी, तो जितनी एस्पिरेशनल वाली चाय थी वो वहीं की वहीं रह गई। तो क्या आपके साथ भी कैफे में ऐसा हुआ था कि आपने हो सकता है 80,000 चाय की वैरायटीज या कस्टमाइजेशन किया, लेकिन बिकती तो 3 से ज्यादा नंबर जो है वॉल्यूम में नजर नहीं आता? मतलब हमको एक्चुअली एक बहुत अलग बिहेवियर दिखता है हरपाल। अच्छा, हमको ये दिखता है कि एक दो तीन हमारे से 20-30% कॉम्बिनेशंस को 2-3 टाइप की चाय कवर करती है, जो अपनी अच्छा। अदरक तुलसी इलायची चाय हो गई। हाँ। कुछ कस्टमर ने उसको कड़क कर दिया, कुछ कस्टमर ने उसको दूध ज्यादा, दूध कम कर दिया। फिर उसके बाद ना एक बहुत बहुत लॉन्ग टेल प्रेफरेंस होता है कि आपके 1% कस्टमर बोलेंगे कि मुझे अदरक तुलसी और सिनेमन अच्छी लगती है, और मुझे वो चाय कड़क चाहिए। कोई कस्टमर बोलेगा कि मुझे हल्की पत्ती के साथ ज्यादा दूध चाहिए और मुझे बस इलायची चाहिए। और बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस है ना, तो कस्टमर पहले आते हैं और अपनी एक चाय ट्राई करेंगे, दूसरी चाय ट्राई करेंगे, तीसरी चाय ट्राई करेंगे, चौथे चाय तक ना उनको समझ में आ जाता है यार ये मेरी चाय है। करेक्ट। और उसके बाद वो फिर उसी पे स्टिक करते हैं कि मैं यही हर बार ऑर्डर करूंगा। तो वो चाय शायद अदरक तुलसी इलायची काली मिर्च की चाय हो सकती है, फुल दूध, मलाई मार के, शुगर और कड़क पत्ती, राइट। और फिर वो कस्टमर हमेशा आके वही लेंगे। वाह। तो राघव कभी ऐसे भी हुआ कि क्योंकि यॉल केम अप फ्रॉम एन IIT बैकग्राउंड, तो जब आपने स्टार्टअप फॉर चाय या फूड की शुरुआत की थी, was there any support that y'all thought, or y'all thought that there has to be a lady who needs to also define this recipe? So did you all get any help from
the grahani, your mother, or Nitin's wife, or any other ladies group that कि भाई चाय बनानी है तो आके बताइए हमें कैसी बनानी है? नहीं डेफिनेटली हम लोग ने बहुत सारे लोग से उसमें सपोर्ट लिया था। मतलब मेरी मेरी मॉम की रेसिपी, हमारा हमारा जो पोहा है वो हम लोग ने वहां जी से लिया था। नितिन के वाइफ के जो डैड हैं उनकी उनकी कीमा पाव की रेसिपी थी। नितिन की मॉम की चाय की रेसिपी थी। हमारा एक होम स्टाइल आलू सैंडविच है, वो नितिन की मॉम ने ही ने पूरा डिजाइन किया था। तो हमारे लिए मतलब बहुत सारे घर वाला इंस्पिरेशन तो बहुत ही स्ट्रांग था हमारे लिए। इट वाज अ वेरी स्ट्रांग पार्ट ऑफ द रेसिपी प्रोसेस। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब वही हमको हमको कस्टमर से भी सुनने को मिला है कि ये जब मैं चाय उसको डिस्क्राइब करता हूँ ना तो मुझे मुझे घर की याद आती है। मुझे एक घर का कंफर्ट फूड याद आता है। मुझे घर का स्वाद याद आता है। सो इट्स काइंड ऑफ होम अवे फ्रॉम होम आल्सो, द काइंड ऑफ प्लेस वी हैव मेड। तो राघव, एक एक चीज ये मैं एक पॉइंट आपसे पकड़ता हूँ, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो हम जब सर्वे भी करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, तो कई बार लोग बुफे में बोलते हैं यार घर जैसा खाना हो, और जब हम घर जैसा हाँ। खाना देते हैं तो कहते हैं यार रेस्टोरेंट में आके घर जैसा खाना खाना तो यहाँ क्यों आएंगे? तो ये आपने एक चीज बोली कि घर जैसा लगता है, और मैं जब अपने रेस्टोरेंट में बोलता हूँ घर जैसा लगता है, तो ये बड़ा डिफरेंट है। मतलब कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट से भाग जाते हैं, और आपके रेस्टोरेंट में ये डेफिनेशन आपने कैप्चर कैसे कैसे करके रखा है? बट आई थिंक जो भी डिशेस हमने बनाई जी है दे हैव ऑलवेज बिन कि घर घर का जो एलिमेंट है, जो हम बचपन में अ, या जो हम कॉलेज के साथ एसोसिएट करते थे, कॉलेज लाइफ के साथ, वो सब एलिमेंट्स हम लोग लाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमने एक मैगी सैंडविच लॉन्च किया है। जी तो इट इज कॉल्ड एज 2 मिनट हम्म, सैंडविच। बट बट वो मैगी बना के उसको सैंडविच के अंदर ग्रिल करके देना, जी दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी जो जो आपने शायद कभी कभी अपने घर पे ट्राई किया होगा हम्म, बचपन में। कि आपने टोस्ट बना के उसके अंदर मैगी बचा हुआ था, मैगी डाल दिया, उसको टोस्ट को ग्रिल करके खा लिया। वेरी बैचलर राइट। काइंड ऑफ फीलिंग है। हाँ। बैचलर या कॉलेज लाइफ टाइप की फीलिंग। और हमारे जैसे बन भुजिया है, जी तो तो आपने बन अपने बन में बटर लगाया, उसके अंदर थोड़ा सा नमकीन भुजिया डाल दिया, हम्म, और वो क्रंची भी हो गया। आपको आपको रात को कुछ कुछ मतलब हल्की सी भूख लगी है डिनर के बाद, हम्म, तो आपने वो खा लिया। राइट। इट्स अ वेरी जुगाड़ू काइंड ऑफ स्नैक। करेक्ट। तो इस टाइप की चीजें हम लोग करते हैं विच आर नॉट कि आप हर रोज का घर का खाना, बट आपका एक एक जो घर के खाने वाली फील है, बट आपको बस यहाँ पे ही मिलता है वो। लेकिन इसमें मैं एक चीज और थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। राघव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट इज एन एस्पिरेशन। लोग रेस्टोरेंट जाते हैं वंस इन अ वीक, फैमिली डिनर पे या किसी ओकेजन पे। लोग रेगुलर रेस्टोरेंट नहीं जाते। यस करेक्ट। लेकिन चाय कैफे जो है, अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस की मीटिंग से बाहर निकल के आपको घर वाली चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किसी ना किसी चाय कैफे में जरूर जा सकते हैं। सही बात है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर आई गेस। करेक्ट। एंड जो हमारी कस्टमर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, ऑन एन एवरेज हमारे कस्टमर हमारे पास 3.8 टाइम्स अ मंथ आते हैं। सो 3.8 टाइम्स अ मंथ इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब नियरली आप एवरी वीक वंस आ रहे हो। राइट। सीइंग दैट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी चाय एक 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 पर्टिकुलर टाइप की चाय आपको पसंद आ गई, तो आप चाय तो हमेशा रिपीट करोगे। बट जब आपकी फूड की बात करें, तो कस्टमर भी चाहता है कि यार कुछ कुछ नया लाते रहो आप। मतलब अगर मैं सुबह आ रहा हूँ तो मुझे एक पोहा मिल रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, अ, मुझे एक सुबह होम स्टाइल आलू सैंडविच मिल रहा है, मुझे कुछ पराठा मिल रहा है सुबह। अगर अगर मैं शाम को आ रहा हूँ तो मुझे एक पालक पत्ता क्रिस्पीज मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ पालक पत्ता चाट। मुझे मुझे पकोड़े मिल रहे हैं, मुझे वड़ा पाव मिल रहा है। सो सो हम लोग ने फूड मेन्यू भी अलग अलग टाइम ऑफ डे के लिए अलग अलग चीजें डिजाइन करी है, ताकि आप एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हो, तो आपको कभी कभी ऐसा मन करता है कि मुझे घर घर जैसा खाना चाहिए। कभी कभी आपको मन करता है कि यार मुझे मुझे थोड़ा इंटरनेशनल फ्लेवर्ड सैंडविच खाना है। So then you can try like Italian mushroom sandwich or a Sicilian chicken sandwich. Uh, so so चाय के साथ जो भी टेस्ट में जाता है, we try to give different kind of variety according to day parts. I mean that one thing which I could catch from you is कि हम लोग अपने रेस्टोरेंट में जो एवरेज फ्रीक्वेंसी देखते हैं, वो लोग 45 दिन में एक बार आते हैं,
तो जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है वो महीने में शायद एक बार आएगा. राइट. But your frequency is quite high. I mean, 3.8 times is a good number. I mean, for a child, I wish it increases more. Uh, that definitely. To टपरी पे तो almost टी ब्रेक हुए तो टपरी में जाते. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब हमारे लिए तो ये है कि हम आपको दिन की जो आप 2 चाय पी रहे हो, आप आपके घर पे हो सकता है, वो आपके ऑफिस में हो जी. सकता है, या बाहर हो सकता है, एयरपोर्ट पे हो सकता है, मॉल में हो सकता है, मेट्रो स्टेशन पे हो सकता है. तो हमारा तो यही सपना है कि आप अगर महीने की 60 चाय पी रहे हो, तो हम आपको 60 की 60 चाय कैसे पिला सकते हैं. और इससे एक चीज समझ में आती है कि नॉन एस्पिरेशनल बिजनेस को भी कैसे एस्पिरेशन बनाया जा सकता है. Yes, I mean, because it's definitely challenging. I'm like I said, my first question that I asked him कि वो कौन सी ऐसे फायर बैली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय पहले जब ऐसे ही होते थे, जब many of these IITians who would come and partner, so I would like नहीं यार ये चलेगा नहीं यार, नहीं यार ये चलेगा नहीं. Then over a period of time I realized कि यार ये तो चल पड़ा है, ये तो चल पड़ा है, ये तो चल पड़ा है. So that's something which is very interesting to capture, which I think will be good for all the chefs to hear this podcast out and hear Raghav out. कि भाई मजे वाली बात है ये. You need to really stay there and keep your passion intact, and understand the customer very well. So which Raghav very well pointed कि we are understanding the needs of the customer and accordingly working on चायोस. So that's brilliant. I mean, क्योंकि हम रेस्टोरेंट खोलते हैं तो हमें ये लगता है यार दिल्ली वाला बटर चिकन नहीं मिल रहा बॉम्बे में. मतलब यार ये दिल्ली वाला क्या होता है भाई, बटर चिकन. राइट. तो अमृतसर जाते हैं तो वहां पे थोड़ा भी ज्यादा मीठा हो जाए, यार ये क्या शुगर सिरप खिला दिया बटर चिकन में, ऐसा थोड़ी होता है. तो ये कस्टमाइजेशन जो है ये मार देती है. और आपने चाय में इतनी बढ़िया कस्टमाइजेशन की है, तो इसलिए मैंने वो पूछा था कि चाय पत्ती जब आप सोर्स करते हैं तो क्या मन में रखते हैं और कैसे आपने वो डिफाइन किया कि चाय पत्ती ये होनी चाहिए. I'll tell you a brilliant example. My daughter is struggling, younger one, for चाय. She is very passionate about it. अभी तक उसने मार्केट में जितने रिटेल ब्रांड्स है चाय के सब ट्राई कर लिए. 2 दिन के लिए रहती कि नहीं ये वाली ठीक है, तीसरे दिन कहती नहीं मजा नहीं आया पापा ये चेंज करते. तो चौथे दिन मैं देखता हूँ एक नया पैकेट आ जाता है. तो आपने Okay. मतलब वो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या किया आपने ऐसा, जो आई रियली फील, बिकॉज हमारे कैफेटेरियाज में जब भी चाय बनती थी वो टी अर्न में जाते ही चाय का सत्यानाश हो जाता है. लेकिन Yeah. आपने वो बहुत ब्रिलियंटली डिफाइन किया कि चाय का टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहता है. तो वो कैसे हुआ, मतलब एक तो पत्ती, उसमें जो इक्विपमेंट लगा उस पे डेफिनेशन, उस पे आपने डिफाइन कैसे किया कि भाई इससे चाय जो है वो उसका फ्लेवर चेंज नहीं होता. जनरली टी अर्न्स में चाय रखें राघव तो आई एम श्योर यू विल एग्री दैट वो फ्लेवर चेंज हो जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल. चाय का मजा इज व्हेन इट इज हैड फ्रेश. मतलब करेक्ट. जो चाय बन के अगर 2 घंटे रखी हुई है तो वो चाय का फ्लेवर तो कॉम्प्रोमाइज हो ही गया है. तो सर हमारे लिए मतलब ये जो आपने अभी शेयर किया है उसके 2 पार्ट्स हैं हमारे लिए. वन पार्ट इज कि आप कैसे बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और बेस्ट ब्लेंड्स सोर्स करके उसका क्वालिटी इंश्योर कर सकते हो. तो उसमें मतलब सब कुछ हमारे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग और क्वालिटी की टीम है जो मतलब ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके वो बेस्ट सोर्सेज निकालती है कि अगर मुझे सिनेमन खरीदना है ना तो मुझे केरला से ही सिनेमन खरीदना है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सिनेमन. अगर मुझे तुलसी खरीदनी है ना तो मुझे उत्तराखंड में एक ही फार्म में जाके मुझे वहां से ही खरीदना है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट आई कैन इंश्योर दैट आई एम एबल टू गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ तुलसी. सिमिलरली चाय पत्ती के लिए भी वही होता है कि वी आर एबल टू टॉक टू वेरी फ्यू प्लांटेशंस, वी आर एबल टू सोर्स फ्रॉम देयर. एंड फिर हमारे बहुत ही रिगरस क्वालिटी चेक्स होते हैं, हमारे टेस्टर्स होते हैं, हमारे खूब सारा मतलब लैब टेस्टिंग होती है टू इंश्योर दैट जो भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा. सो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. अब अगर आपने बेस्ट चाय पत्ती भी ले ली, आपने बेस्ट फ्लेवर हर्ब्स सोर्स कर लिए, उसके बाद भी चाय बनाने का जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप उसको फ्रेश बना रहे हो वो चाय थोड़ी ज्यादा पक गई या कम पक गई, दूध 20 ml ज्यादा डल गया
या या अदरक की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आधा ग्राम ज्यादा डल गई, तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो बैलेंस आता है पूरे प्रोसेस के थ्रू, कि आपने आपने कितने कितने टाइम के लिए चाय को उबाला है, आपने आपने चाय को कितने उबाल दिलाए हैं। तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन के साथ ना हम लोग काफी स्ट्रगल करते थे, और हम बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते थे ट्रेनिंग में, कि जो भी हमारा नया टीम मेंबर ज्वाइन करेगा, अ, उसको उसको शायद 30 से 50 दिन की ट्रेनिंग लगेगी टू बी एबल टू स्टार्ट मेकिंग चाय। तो इसलिए हम लोग ने ये आइडेंटिफाई किया, और 2015 में जब चाय को 3 साल हो गए थे, अ, हमने एक अ, हमने एक चाय ऑटोमेशन पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे किसी भी कॉफी कैफे में आपके पास एक कॉफी मशीन होती है, जी, जो आपको एब्सोल्युटली प्रिसाइज एक 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 कॉफी बना के आपको दे देती है। आप उसमें प्रेशर सेट कर सकते हो, आप उसमें वॉल्यूम सेट कर सकते हो, आप उसमें अलग अलग टाइप के बीन्स का आइटरेशन कर सकते हो। बट ये सेम चीज ना चाय के लिए किसी ने किया नहीं था अभी तक। जी, मतलब हमने बहुत रिसर्च किया कि ग्लोबली चाय मशीन्स किसी ने बनाई है। वी रीच्ड आउट टू लॉट ऑफ फूड ऑटोमेशन कंपनीज, बट हर जगह वही था कि नहीं यार, चाय के लिए तो कुछ नहीं है हमारे पास। सो हमको ये दिखा कि अगर अगर आप एक चायोस में जा रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपने चायोस को नोएडा में ट्राई किया, फिर आपने जाके बॉम्बे में ट्राई किया, फिर आपने जाके चंडीगढ़ में ट्राई किया, तो आपको हर जगह सेम चाय मिलनी चाहिए। नहीं तो मेरी वाली चाय का तो प्रॉमिस ही नहीं रहा। करेक्ट, And and that is what led us to build our own technology team, build our own hardware team in house, जिसने जिसने पिछले पिछले 4-5 साल से इसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, कि जो जिसको हम चाय मॉन्क बोलते हैं। तो चाय मॉन्क इज एन ऑटोमेटेड आईओटी चाय मशीन, चाय रोबोट बोल सकते हो आप उसको, जिसने पूरा एक हाथ से चाय बनाने वाला प्रोसेस को 100% ऑटोमेट कर दिया है। तो इसमें जो जो आप हाथ से करते हो कि मुझे एक चाय को 4 उबाल या 5 उबाल देने हैं, मुझे मुझे एक मुझे एक एक्स ग्रामेज ऑफ पत्ती डालना है, मुझे एक्स ग्रामेज ऑफ चीनी डालना है, और उससे मेरी परफेक्ट चाय बन जाएगी, राइट? उस पूरी चीज को हमने हमने ऑटोमेशन रूट ले लिया है, और हमारे सारे कैफेज में अब मतलब 3 या 4 चाय मॉन्क हर एक कैफे में अवेलेबल होते हैं। एंड दीज आर मेकिंग ऑल द चाइज, एंड इससे ही हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट हम लोग अचीव कर पाए हैं। एंड दिस इज अ ऑटोमेशन इनोवेशन, जिसके लिए हम हमारे पेटेंट्स भी फाइल्ड हैं। इट्स अ कंप्लीटली इनोवेटिव प्रोसेस, मतलब पूरा पूरा फ्रॉम स्क्रैच हमने इन हाउस उसको बनाया है। तो आज हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि बॉस, जो आपने चाय दिल्ली में पी है ना, वो सेम चाय आपको बॉम्बे में मिलेगी। ये मेरी कमिटमेंट है। एंड दैट इज द पावर ऑफ द प्रॉमिस ऑफ सेइंग कि यार, आपकी वाली चाय हम आपको कंसिस्टेंटली सर्व करेंगे। राघव, चाय की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि कैसे वो चाइना में उसका ओरिजिन हुआ। ओरिजिन तो खैर इंडिया चाइना ऑलमोस्ट एक टाइम पे हुआ था, लेकिन किस तरीके से चाइना में फाउंड हुई, राइट? और राइट। ऊलोंग जो चाइना की सबसे फेमस चाय है वो वहां से निकली। या तो या आपने आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्योंकि पूरा एशियन कल्चर जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड टी, और यस, वो एशिया से ही वेस्ट में गई है, तो करेक्ट। आपने आपने चायोस के एक्सपेंशन के बारे में कभी सोचा कि क्योंकि चाइना और अदर एशियन कंट्रीज जो हैं वहां पे भी चाय की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो क्यों ना इंडियन चाय को भी वहां पे लेके जाया जाए? बिल्कुल हिमांशु, आई थिंक हमारे दिमाग में ये आइडिया मतलब नियरली डे वन से है, कि चायोस का एक बढ़िया ग्लोबल पोटेंशियल हो सकता है। एंड नॉट जस्ट एशियन कंट्रीज, बट अगर आप किसी भी ऐसे देश को देखो जहां पे भी इंडियन डायस्पोरा है, बी इट अ मिडिल ईस्ट, और बी इट ऑस्ट्रेलिया, बी इट यूएस, कनाडा, मतलब किसी भी जगह पे एक अच्छा चाय और इंडियन स्नैक्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया चल सकता है। सो सो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज गुड पोटेंशियल देयर। इट इज जस्ट राइट टाइमिंग कि हम कैसे वो राइट एक्सपेरिमेंट्स करके इसको मतलब चाहे उसको एक ग्लोबल ग्लोबल ब्रांड बनाने की फाइट मार सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा राघव, कभी आपने, आई एम श्योर बिकॉज यूर इनटू द चाय बिजनेस, देखिए बॉम्बे, आई वुड से हाफ ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान में एक कम्युनिटी बड़ी फेमस है जिनकी हाथ की चाय पीना मेरा ख्याल से सभी लोग तरसते हैं, स्पेशली व्हेन यू लिव अराउंड दिस एरिया,
called the Bhatt community. तो वो अपनी चाय डिफाइन भी करते हैं कि जब तक ब्रास के पतीले में नहीं बनेगी वो चाय नहीं होती। तो ये आपने कभी वो वाली चाय टेस्ट की है? ये वाली मतलब आई हैव सीन मेनी ऑफ दिस न्यू टी स्टोरीज कम अप इन बॉम्बे, बट अगर भट्ट उनके सामने है तो लोग भट्ट के पास जाके पीते हैं। मैंने एक्चुअली नहीं ट्राई किया शेफ, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट आउट नाउ। आई एम गोइंग टू गूगल इट And next time I think if you come, so you must try कि भट्ट वाली चाय I'll पीनी try. है। और मेरे ख्याल से अगर बॉम्बे में 10,000 टपरियां होंगी फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 9,500 शायद भट्ट की होंगी, ये जितनी भट्ट कम्युनिटीज होंगी, और उनमें चाय जो है वो आपको स्टैंडर्डाइज मिलेगी थ्रू आउट, ऑल्दो हर बार फ्रेश क्या? बनती है लेकिन स्टैंडर्डाइज मिलती है। उसमें पता नहीं कौन सा जादू डालते हैं वो कि वो चाय पीने बिल्कुल में मजा आता बिल्कुल। है। नहीं I'll definitely try it out. I think मैंने ट्राई किया ही होगा by kind of scale that you are talking about. But मैं definitely इसके बारे में पढ़ूंगा थोड़ा। तो दिस कम्युनिटी इज वेरी फेमस अक्रॉस इन बॉम्बे, एंड इन्होंने ही शुरू से जो चाय का कल्चर ये लेके आए हैं, ये मतलब काफी बॉम्बे की सड़कों पे तो इन्होंने पूरा घेर रखा है, और कहीं कहीं पे इनके अपने छोटे से स्टॉल मतलब बाकायदा दुकानें हैं जहाँ पे लोग जाके चाय पीते हैं, कटिंग चाय, और वो काफी अच्छा स्टैंडर्डाइज किया उन्होंने, ऑल्दो इट इज नॉट डन टू द एक्सटेंट दैट कि बट चाय पत्ती उनकी सब जगह जाओ तो मैंने कई जगहों पे चेक किया कि काफी सिमिलर है, लेकिन कुछ तो ऐसा करते हैं जो मजा है। बट उसमें उन सारी चीजों में एक चीज जरूर देखिए, वो ब्रास वेसल सभी का कॉमन है। इंटरेस्टिंग। तो राघव, आप सबको चाय पिला रही हैं। आई डोंट नो आप कितने हजार कप चाय आज तक पिला चुके होंगे। आपकी चाय की प्रेफरेंस क्या है? तो मेरी चाय की प्रेफरेंस मुझे मुझे एक चायोस में हमारे पास एक सब कुछ चाय है, विच इज कि आपके 12 के 12 जो एड ऑन फ्लेवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अदरक, तुलसी, इलायची, मसाला, काली मिर्च, मिंट, मोटी इलायची, अजवाइन, ये सारे मिक्स करके आप एक चाय बना दो, और एक सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया लगती है मुझे। और दूसरी जो मेरी एक फेवरेट है वो है हरी मिर्च की चाय। हरी मिर्च की चाय, आई रेड अबाउट दिस। हाँ। आई मीन मैंने अपने रेस्टोरेंट में राघव हरी मिर्च का हलवा बनाया था, आपने हरी मिर्च की चाय बनाई है, वाह क्या बात है। हरी मिर्च का हलवा तो साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. ये कैसे बनाया? हरी मिर्च का हलवा एक्चुअली टेस्ट इंटरेस्टिंग, लेकिन चाय आई मीन दिस इज कमेंडेबल। तो क्या है ये हरी मिर्च की चाय? हरी मिर्च की चाय एक अदरक मसाला चाय है, और इसमें थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्च डालते हैं, जिससे ना आपको तो चाय का टेस्ट तो अदरक का टेस्ट होता है, बट आप जब एंड में जब आपको टेस्ट आता है, वो एक हरी मिर्च का स्पाइस आता है एट द बैक ऑफ योर थ्रोट। तो ना उससे बहुत ही बढ़िया पंच आता है। जैसे अगर आपने काली मिर्च की चाय पी है कभी, सो इट इज लाइक दैट, बट एक थोड़ा ज्यादा स्पाइसीनेस होता है इसमें। That's very interesting. I mean, क्योंकि जब मैंने आप जो रेसिपी बता रहे हैं ना, मुझे लग रहा है मुझे एक बार जाके ट्राई जरूर करनी पड़ेगी अपने। और मेरे ख्याल से ये जितने लोग पॉडकास्ट सुनेंगे वो जरूर एक बार कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने मतलब अभी मैं जब से प्रोबायोटिक सब कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि भाई हरी मिर्च से दही जम जाता है, हरी मिर्च से सोया कर्ड बन जाता है, ये हरी मिर्च से चाय बन जाती है, ये प्रोबायोटिक वाली चाय होगी शायद। राइट। सुपर, very interesting, Raghav. I think it's a very interesting intake सभी के लिए, जो लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे और सबको बड़ा मजा आएंगे। आई एम श्योर हरी मिर्च की चाय जो है वो इस पॉडकास्ट के द्वारा और पॉपुलर होंगे, लोग जाके अब ट्राई करेंगे कि हरी मिर्च की चाय क्या है। भाई शेफ हरपाल का हरी मिर्च का हलवा खाया है, ये राघव की हरी मिर्च की चाय क्या है। आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोइंग टू ट्राई, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी विश कि आप इस चायो स्टोरी को पूरे वर्ल्ड में लेके जाएं। इंडियन स्टार्टअप है तो हम जरूर चाहेंगे इसे और सपोर्ट करना, और जैसे भी हम लोग कर सकते हैं करेंगे, एंड वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। सो आई थिंक हिमांशु, इफ देयर इज एनीथिंग। Thank you so much, Harpal. Thank you, Harpal. Thank you, Himanshu. It was great talking to you. थैंक यू राघव, इट वाज इक्वली प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड हैविंग यू ऑन द शो। और जैसा कि हरपाल ने कहा, हम चाहते हैं कि हम जिस भी कंट्री में जाएं
वहां पे एक चायो जरूर मिले। सही है, बिल्कुल करेंगे। वी आर श्योर कि ये एपिसोड सुन के मजा तो जरूर आया होगा और अगला एपिसोड सुनने का इंतजार अभी से हो रहा होगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और शुद्ध देसी मेहमान के साथ। तब तक चाय का कप उठाएं और एड स्टूडियोज के साथ जुड़ जाएं, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे, और कुछ बिहाइंड द सीन फुटेज, लाइव गेस्ट इंटरेक्शन और हमारे होस्ट के साथ चाय भरी बातों की गाड़ी आगे बढ़ाएं। और हाँ, सुनते रहिए शुद्ध देसी चाय अपने पसंदीदा पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे।